हेलो एवरीवन, वेलकम टू कोडिंग ट्यूशंस। आज के वीडियो में हम सोल्यूशन देखेंगे ऑफ अनदर हैकर रैंक प्रॉब्लम विच इज़ सुपर रिड्यूस स्ट्रिंग। इसके पहले मैंने काफ़ी सारे हैकर रैंक पे वीडियोस बनाए हैं ऑफ एरेज एंड लिंक लिस्ट, सो इफ़ यू हैवंट वॉच्ड दोज वीडियोस इट्स लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। एंड ऑल्सो इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब्ड एंड यू फाउंड द कंटेंट ऑफ दिस चैनल हेल्पफुल देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग। सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो सबसे पहले हम प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। ये क्या लिखा है? Reduce a string of lowercase characters by doing a series of operation. In each operation, select a pair of adjacent letters that match and delete them. Delete as many characters as possible using this method and return the resulting string. If the final string is empty, return empty string as the output. So basically बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है। हमें एक स्ट्रिंग दिया रहेगा। What we have to do is we have to find a pair of adjacent letters that match. And if we get such a pair, we have to delete both the characters. For example, यहाँ पे जो पहला string दिया है ये क्या है? AAB. So यहाँ पे अगर हम first to A को देखेंगे, what these two are adjacent and both of the characters match, so we delete them and what will be the remaining string? It will only remain B. ठीक है? Second string का example देते हैं ABBA. First B and B match हो जाएंगे, उसको delete करेंगे, then after deleting हमें AA बचेगा। ठीक है, since these two characters are also adjacent and they are matching, we delete AA also. After deleting we will get an empty string, so we will return this as the output. Okay, I hope this much is clear and also I will request you guys, सबसे पहले आप खुद से ट्राई करिए प्रॉब्लम, एंड अगर आपको फिर भी नहीं आ रहा देन ओनली सी दी सोल्यूशन, अदरवाइज डायरेक्टली सोल्यूशन पे चले जाओगे तो आपको कुछ लर्निंग इतना मिलेगा नहीं। ठीक है, so let's start with the explanation of the logic first and then we will see the implementation. Okay, so इसका लॉजिक समझने के लिए हमने यहाँ पे एक एग्जांपल ले लिया है। ये स्ट्रिंग है 4 कैरेक्टर्स का A, BB एंड A। ठीक है, so to remove adjacent characters हम क्या करने वाले हैं देखते हैं। सबसे पहले हम एक और स्ट्रिंग बना देंगे रिजल्ट करके। ठीक है, and we will return this one, right? and what we will initialize this string with, हम इसको initialize करेंगे the first character of our input string। यहाँ पे first character क्या है? which is at 0th index A है, so हम ये result को पहले initialize कर देंगे A से। ठीक है, now our string जो हमें traverse करना है in a loop will be BBA, क्योंकि first character हमारे result में आ चुका है। ठीक है, so हम इस पे for loop लगाएंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे index लिख देते हैं 1, 2 and 3. 0th index is over here. ठीक है, so for when I is at index 1, so यहाँ पे character क्या होगा? B. so हम चेक करेंगे whether the character at index I is equal to the last character of our result। अब अपने result string का last character क्या है? A है, right? and ith index पे कौन सा character है? B। ये दोनों characters are not matching, so what we will do is we will copy this B to our result. Okay, now our result will be AB. Now I will be incremented to index 2. Now again we got B over here at index 2, and what we will do कि whether the last index of our result which is B is matching to the character at index I which is also B. Yes, it is matching. So what we will do is, क्योंकि ये मैच हो रहा है हमें क्या करना था? हमें डिलीट करना था, राइट? तो हम ये भी यहाँ से डिलीट कर देंगे और ये इंडेक्स आई को इंक्रीमेंट कर देंगे, राइट? नाउ इंडेक्स इज एट 3। ठीक है, अब क्या देखेंगे? वेदर दिस कैरेक्टर इज इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर, बिकॉज यहाँ से बी डिलीट हो चुका है तो लास्ट कैरेक्टर अभी अपने रिजल्ट में क्या रहेगा? A रहेगा, राइट? सो दिस A and this A is matching. What we will do? We will delete this A as well. Now our result string will be empty and we will increment our I. अब I हमारा string के बाहर जा चुका है, so ये loop यहाँ पे खत्म हो जाएगा and since the result is empty, we will return empty string as the output. I hope आपको ये logic समझा होगा। एक और example लेके समझते हैं। Let's take an example AAA BCCD। ठीक है, आई होप आपको क्लियर होगा अब तक। ये बड़े एग्जाम्पल से आपको और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? रिजल्ट स्ट्रिंग बनाएंगे, उसको अपने फर्स्ट कैरेक्टर से इनिशियलाइज कर देंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे इंडेक्स भी लिख लेता हूँ 0, 1, 2, 3, 4,
5 and 6. Now we are at index 1 because our loop will start from here. Now see, क्या the character which is at index I matches the last character of our result? Yes, both are A. तो हम क्या करेंगे, यहाँ से डिलीट कर देंगे रिजल्ट से and I will be incremented over here. Now what we will do, whether this character which is at index 2 is matching to our result string? No, because result string हमारा empty है. तो हम क्या कर देंगे, ये A को यहाँ पे पुश कर देंगे. ठीक है, अब हम इंडेक्स 3 पे है क्योंकि हमारा I इंक्रीमेंट हो गया. Now we will get B. We will match whether this B is equal to A. No, so what we will do, we will push the B over here and we will increment our I to C. Now देखेंगे C is not matching with B. We will do the same. राइट, नाउ हम देखेंगे ये यहाँ पे I अपना इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड I इज एट इंडेक्स 5. अब देखेंगे वेदर दिस C इज मैचिंग आर लास्ट कैरेक्टर ऑफ आर रिजल्टेंट स्ट्रिंग. यस, यहाँ पे भी C है और अपना इंडेक्स पे भी C है. सो वी विल डिलीट दिस C. नाउ आर रिजल्टेंट स्ट्रिंग विल बी AB. नाउ I will be incremented to the last index which is D. We will see whether D is matching with B. No. सो हम क्या करेंगे, यहाँ पे D पुश कर देंगे एंड I इंक्रीमेंट हो जाएगा एंड I विल बी टूवर्ड्स द एंड ऑफ द स्ट्रिंग एंड यहाँ पे फॉर लूप खत्म हो जाएगा. जो भी रिजल्ट में बचा होगा, राइट, जो भी रिजल्ट में बचा होगा ABD विल बी आर सोल्यूशन. राइट, आई होप आपको लॉजिक समझा होगा. अगर कुछ भी डाउट हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो देन प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग. नाउ जैसे कि आपको लॉजिक अभी क्लियर हो गया हो, आई विल अगेन रिक्वेस्ट यू कि आप कोड खुद से करना ट्राई करें. देन अगर कोड में भी प्रॉब्लम आ रहा है देन आप आके सोल्यूशन देखें. ठीक है, नाउ लेट्स सी द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रॉब्लम. ओके, सो हियर इज द कोड. जैसे कि मैंने पहले बोला था, सबसे पहले हम एक स्ट्रिंग क्रिएट करेंगे रिजल्ट, एंड उस रिजल्ट पे हम अपना फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ आर इनपुट स्ट्रिंग विच इज़ S हम पुश कर देंगे. ये पुशबैक फंक्शन C++ के STL लाइब्रेरी से आ रहा है. ठीक है, सो what we will do is result.pushback S of 0, मतलब हम फर्स्ट कैरेक्टर पुश कर रहे हैं अपने रिजल्ट पे. राइट, एंड now our for loop will start from index I equal to 1 and it will run till our string ends. ठीक है, सो आपको ऑलरेडी पता होगा कि स्ट्रिंग whenever the string ends उसके लास्ट में क्या होगा, /0 होता है. दैट मीन्स द स्ट्रिंग ends over here. ठीक है, ये फॉर लूप यहाँ से स्टार्ट होगा. नाउ एवरी इटरेशन पे हम चेक करेंगे वेदर द करेंट character at index I is equal to the last character of the result. अभी ये जो result dot length -1 से हमें क्या मिल रहा है, लास्ट कैरेक्टर का इंडेक्स मिल रहा है. देन हम चेक कर रहे हैं whether the result of the last character is equal to the current character of our input string. If yes, तो देख जैसे कि हमने देखा था B मैच हो रहा था, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं रिजल्ट से लास्ट कैरेक्टर को या पॉप बैक फंक्शन से. एल्स इफ द करंट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर ऑफ आर रिजल्ट, हम क्या करेंगे, जो करंट कैरेक्टर है उसको भी पुश कर देंगे. आई होप आपको ये फॉर लूप का लॉजिक समझा होगा. नाउ फॉर लूप खत्म होने के बाद हम क्या करेंगे, रिजल्ट का लेंथ चेक करेंगे वेदर द रिजल्ट डॉट लेंथ इज पॉजिटिव. अगर पॉजिटिव है तो कुछ नहीं, हमें रिजल्ट रिटर्न कर देना है. ठीक है, नाउ सपोज अगर रिजल्ट एम्प्टी हो जाता है, जैसे कि हमने ये एग्जांपल पे देखा था. राइट, यहाँ पे जब हमने ये लिया था ABBA, यहाँ पे अपना रिजल्ट क्या आया था, एम्प्टी स्ट्रिंग. So we will not return an empty string, we will return this string. What we will return when our result string is empty, we will return empty string as the output. I hope आपको ये समझा होगा. Let me explain you once again. सबसे पहले हमने एक string बनाया रिजल्ट, उसको पुशबैक फंक्शन से फर्स्ट कैरेक्टर पुश कर दिया. Then our for loop will start from I is equal to 1 and it will end when the string ends. ठीक है, फिर चेक करेंगे whether the current character is equal to the last character of our result. If yes, तो हम जो लास्ट कैरेक्टर ऑफ द रिजल्ट है उसको पॉप कर देंगे, मतलब रिमूव कर देंगे. अगर ऐसा नहीं है, मतलब करंट कैरेक्टर इज नॉट इक्वल टू द लास्ट कैरेक्टर, मतलब दोनों मैचिंग नहीं हो रहा है. सो व्हाट वी विल डू, वी विल पुश बैक द करंट कैरेक्टर ऑल्सो टू आवर रिजल्ट. आई होप दिस मच इज क्लियर. नाउ इसके बाद फॉर लूप एंड हो जाता है एंड बाइनरी ऑपरेशन से हम रिजल्ट रिटर्न कर देते हैं. आई होप दिस मच इज क्लियर. ये प्रॉब्लम हम स्टैक से भी सॉल्व कर सकते थे, बट वो थोड़ा और लेंदी प्रोसेस हो जाता है बिकॉज वो काफ़ी मैंने वीडियोस देखे हैं जिसमें स्टैक यूज़ किया जा रहा है. बट आई थॉट ये आइडिया एक अच्छा आइडिया होगा इंस्टेड ऑफ यूजिंग अ स्टैक.
सो लेट्स रन दिस कोड। सो सैम्पल टेस्ट केसेस तो पास हो गए, सबमिट कर देते हैं। ऑलरेडी मैंने कर रखा है सबमिट, सो पास हो ही जाएंगे। येस, सो ऑल द टेस्ट केसेस आर क्लियर्ड एंड वी गेट द सोल्यूशन। अगर आपको ये सोल्यूशन अच्छा लगा हो देन प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, एंड अगर इसमें से कुछ भी डाउट हो फिर भी कमेंट करो। हम आई विल ट्राई टू क्लियर ऑल योर डाउट्स इन द कमेंट्स। एंड प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लो। अभी तक सिर्फ 77 सब्सक्राइबर्स हुए हैं। माई गोल इज़ टू रीच 100 सब्सक्राइबर्स एज सून एज पॉसिबल। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। Thank you for giving your time. Bye.